प्राइमर हमें क्या बताता है कि केमिकल मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। अब ये कैसे समझे हम? Let's come to the lecture number 2 of chemistry, chapter number 1, fundamental of chemistry. Today's topic, branches of chemistry. First, we will recall their name together. After that, we will discuss about their definitions along the examples. Now, one by one, we will discuss about the definition of all the branches of chemistry. The first one is inorganic chemistry. It's deal with all the inorganic compound and the elements present in the periodic table. Here in the inorganic chemistry, we will not discuss about the compound that contain carbon and hydrogen bond. Like you can see over there, that there is CH4. Here is the carbon and hydrogen bond. Here with the carbon atom, there are 4 hydrogen atom attached, and because of the hydrogen bonding, that basically form the organic compound. So here in inorganic chemistry, we will not discuss about the carbon and the hydrogen bond containing compound. Similarly, there is the example of the glucose, C6H12 and O6. This is the periodic table. Here is the element present, which we are discussed in inorganic chemistry branch, their detection, their properties, and their composition also we will study in the inorganic chemistry. Some of the example are the iron. There is the pure iron that present the elemental form, and the copper also the example we will discuss in the inorganic chemistry. Beside the elemental form of this compound, we can discuss the molecular form of this inorganic compound also, like glass, which is composed of the many elements present in the periodic table. Now come toward the organic chemistry. It deals with the carbon compound other than simple salt, carbide, oxide, and carbonate, etc. You must have to keep in mind that some of the salts, carbides, oxides, and carbonates we will not discuss in the organic chemistry. They may contain some inorganic compound. So come toward organic chemistry further details that whenever we combine the hydrogen and oxygen along other element present in the periodic table, they form the derivative of the that organic compound. Like I show you here, the bond of O and H. Whenever we combine this functional group to the carbon and the hydrogen, it forms alcohol. Similarly, with this hydrogen and the carbon, whenever I attach this thio group or the sulfur element, it forms the thio compound. So its example, further example that we are using in our daily life is the gasoline, plastic, detergents, dyes, food additives, natural gas, and medicines. These are the example, and along their pictures, the gasoline we are using in our daily life, like, and beside the CH4, the natural gas, we also it's also known as the sui gas. Beside the medicines and the blood composition also concerned with the organic chemistry, and the metabolic process all that occur in our body are discussed in the organic chemistry. So next branch of chemistry is the analytical chemistry. Study and uses of instrument and the method used to separate, identify, and quantify methods is known as analytical chemistry. Please repeat over there. Look again that studies and uses of instrument. We will discuss here about the instruments. Instrument को उर्दू में हम कह देते हैं आला. कोई भी आलात हम जो यूज़ कर रहे होते हैं उसको क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं? अगर हमने इनमें से एलिमेंट का कोई भी मास फाइंड करना है, we will use a spectrometry instrument, right? For the detection of the elements, we will use some different instrument. So in analytical chemistry, we use the method to separate. यानी हमारे पास कोई मिक्सचर है इन एलिमेंट्स का. आप ऊपर वाली एग्जांपल ले लें कि अगर हम अर्थ क्रस्ट में से आयरन और कॉपर को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ये अपने प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो
इनकी सेपरेशन ये एनालिस्ट करेंगे, पर एनालाइज करेंगे क्या है यहाँ पे वो कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है, देन सेपरेट आउट करना, इनके आइडेंटिफाई करना, इनको क्वांटिफाई करना कि हाउ मच क्वांटिटी प्रेजेंट बेसिकली इन दैट केस। और इसके अलावा अगर हम वाटर की भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो भी कौन करेगा, एनालिस्ट ही करते हैं। तो ये हम सारा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है जिसमें एनालिसिस करनी है, दैट इज बेसिकली अंडर डिस्कस अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री. So the basic thing under observation in the analytical chemistry is the quantitative analysis. अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है कि यहाँ पे CH4 आपको वही ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा रहे हैं, इसके अलावा और आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी ले सकते हैं. क्वांटिटी क्या होती है, बेसिकली मिकदार, अमाउंट बताना आपने इसका, यानी 1 कार्बन over there attached with the 4 hydrogen along. Like whenever I take the 1 glass of the carbon, along that I will take the 4 glass of that hydrogen along and make the CH4. It's told about the quantity of that compound. Beside that we will discuss about the qualitative analysis. जैसे आप डेली लाइफ में वर्ड क्वालिटी यूज़ कर लेते हैं, इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये क्वालिटी पेपर नहीं है, ये रफ पेपर है. इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स भी देख लेते हैं तो उसमें आप क्वालिटी को देख के बता सकते हैं. बस ये आपके सामने एग्जांपल एक क्वालिटी फूड की है और साथ ही आपको यहाँ पे एक रोटन फूड दिखा दिया गया है. तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली चेंजेस, अगर एक एनालिस्ट की नज़र से देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो कि क्वालिटी फूड के अंदर नहीं होते, खुद ब खुद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं जो कि क्वालिटी फूड के मेन एलिमेंट्स को किसी और शेप में चेंज कर देते हैं, किसी और जो है कंपाउंड में चेंज कर देते हैं. अब आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ. बायोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर हम एलिमेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं इनको देखेंगे, क्योंकि हम बायो को क्या क्या देते हैं, बायो के हम लाइफ की स्टडी करते हैं. कोई भी लाइफ हो सकती है, वो चाहे प्लांट की हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे एनिमल्स की हो. तो इसमें क्या है, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारी स्टडी हम कौन सी ब्रांच के अंदर करेंगे, वो भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री में. एक बहुत ही रिनाउंड जो हम इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो आप अच्छे से समझ सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर. फोटोसिंथेसिस में क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट व्हेनेवर द कार्बन डाइऑक्साइड गेट मिक्स विद वाटर इट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट इज यूज्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. Chemical equation is present over there, that carbon dioxide with water in the presence of the sunlight will form glucose and oxygen. This is the example of the biochemistry. Now come to in industrial chemistry. Industrial chemistry basically the transformation of the raw material into the useful product to humanity. यानी कि mankind के लिए, इंसानों के लिए जो है कि उनके फ़ायदे के लिए जो भी रॉ मटेरियल है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना यूज़फुल में. अगर खुद सोचा जाए, अगर आप देखें दरख्तों के ऊपर जो है रिजन्स लगा होते हैं उसको हम ग्लू के अंदर चेंज कर लेते हैं, यूज़फुल मटेरियल में चेंज कर लेते हैं. इसके अलावा वुड का पल्प जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, पेपर मेकिंग में चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम, कौन सी ब्रांच में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में. या एग्जाम्पल देख लें, ग्लू फॉर्मेशन है. इसके अलावा ऑयल की रिफाइनरी जो है ये भी किसके अंदर आ जाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में. इसके अलावा कॉस्मेटिक्स ऑल्सो, कॉस्मेटिक जो है उसमें कितनी चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कॉन्शियस चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. नाउ कम टू द न्यूक्लियर केमिस्ट्री. यहाँ पे नाम जाहिर कर रहा है कि ये प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस है एटम के न्यूक्लाई की. ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ एंड द चेंजेस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लाई. कैसे, ये एटम है, एटम के सेंटर जो पार्ट है उसको क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. आपने साइड की तो बात ही नहीं करनी ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपने न्यूक्लियस की बात करनी है. इनकी प्रॉपर्टी, इनके टूटने से जुड़ने से क्या चीज़ कंपोज हो रही है और इनमें कौन से चेंजेस आ रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट इज नॉट न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ये न्यूक्लियस की फिशन दिखाई गई है, यहाँ पे ये छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो रहा है. Now the environmental chemistry is the study of sources, reaction, transports, effects of the chemical species on air, water and the soil. ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी कंपाउंड प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में जो कि किसी न किसी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं.
जैसे एसिड रेन है, यहाँ से वाटर एवेपोरेट हो रहा है और यहाँ से कुछ जो है प्लूटेंट्स ऐड हो रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और जाके किससे मिक्स हो रहे हैं, क्लाउड के वाटर के साथ। चलिए हम यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब मिक्स हो गया, ऐड हो गया H2O के साथ, इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया, H2SO4। अब H2SO4 क्या था, H2SO4 एक बहुत ही corrosive एसिड है जो कि जैसे ही अर्थ पे फॉल आउट होता है वैसे ही साथ साथ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये हम कहाँ स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट में। एनवायरमेंटल जो केमिस्ट होते हैं वो हमें ये सारी चीज़ स्टडी करके बताते हैं कि हमें कहाँ पे प्लूटेंट्स के अमाउंट ज़्यादा हो रही है उसको कम करने हैं, कहाँ पे हर चीज़ को बैलेंस करना। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर हमें क्या बताता है कि केमिकल मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। अब ये कैसे समझे हम, रिपीटिंग यूनिट्स क्या होते हैं, यानी एक ही यूनिट को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उससे कोई केमिकल बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, नाम देख के उसका क्या बता रहा है। यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैनी, और इसके साथ मर लगा हुआ है। मर का मतलब क्या होता है, इसके पार्ट्स या शेप हो गए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे सल्फर देख लें, हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट हैं, और यहाँ पे मैंने सल्फर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच कर दिया था, ये थायर ग्रुप बन गया था। लेकिन अगर ये सल्फर खुद ब खुद ही चेन बनाते जाएं, हमने रिपीटिंग यूनिट क्या है कि एक ही यूनिट रिपीट करता रहे, चाहे वो चेन में है या रिंग में है, तो वो एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है। हमें क्या फ़ायदा उससे, हमें क्या फ़ायदा है उससे, अगर सल्फर चेन कंबाइन करता है तो वो सिंथेटिक रबर कंपोज करता है। अब रबर जितनी सॉफ्ट होती है उसके अंदर उतना ही सल्फर जो है वो ऐड किया गया होता है। इसके अलावा अगर कार्बन की चेन की जाए या उसका रिंग बनाया जाए या उसका कोई लेयर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो डायमंड और ग्रेफाइट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑफ केमिकल कंपाउंड, और साथ उनके अंदर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। इन सब के अंदर जितने भी केमिकल आपने पढ़े हैं ब्रांचेस में, इनकी बॉन्डिंग क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, ये इफेक्ट आउट किस तरह से करते हैं, ये सारे के इनके ऊपर कौन से सेंसिटिव चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, एनवायरमेंटल चीज़ें किस तरह से इफेक्ट आउट कर रही हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द फिजिकल केमिस्ट्री। इनके केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब किस तरह से होती है, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर कैसे है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है।